I'll speak in Hindi. I'll speak in English first. Historic verdict. It has taken the march towards the abolition of the death penalty forward. It is yet another step away from the death penalty. It recognizes the barbarity of this practice, wherein people are killed in this horrible manner, where they are made to live under the shadow of the noose and suffer agonizing torture for decades on end. The court has said that there is no requirement either in Indian law or in international law to prove specific harm, to show the scars of the mental suffering the prisoners have undergone, and the courts have therefore rejected this argument that the prisoner should be required to prove specific harm. In this regard, this is a landmark judgment. It is a step forward in death penalty jurisprudence, not only in India but all over the world. Sir, has court also made any comment for the release of these 3 convicts? The court has said that they have commuted the death sentence to life. In law, life means life, subject to remissions granted by the government under Article 161 and Section 433 of the CRPC. It's now in the hand of the state government to decide whether and when these particular prisoners will be released. Sir, Hindi mein how you see it? इस सवाल जजमेंट कैसे देखते हैं सर, कितना बड़ा फैसला मानते हैं? मेरी राय में ये जजमेंट डेथ पेनल्टी के एबोलिशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये डेथ पेनल्टी को ये दिखाता है, ये जजमेंट, कि डेथ पेनल्टी कितनी घृणित चीज है। जिस तरीके से हम लोगों को मारते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को फांसी के फंदे के नीचे उनकी जिंदगी निकालने के लिए कहते हैं, जितना ये लोग सफर करते हैं, इसका कोई तरीके से साबित नहीं, प्रूफ नहीं हो सकता है, मगर ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये लोग जीवन काट रहे हैं फांसी के फंदे के नीचे। युग चौधरी जी, एक सवाल ये भी है कि क्या अगर कोई देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बम लगा कीचड़ उड़ा देता है, तब भी हम यही मान के चले कि हाँ नहीं, किसी को डेथ नहीं होने की। Ask your question. Yes. So that is a separate argument. Death penalty has certainly not been abolished, and I hope one day it will soon be abolished. I think the time has now come for all of us, including you, my dear, to seriously think about whether we need the death penalty and whether it is not time to abolish the death penalty, whether this death penalty does not disgrace us all in the manner in which it is executed, in the conditions in which we keep people before executing them. In reply to your question about the rights of the victims, just because somebody has killed does not mean we have to kill him again. It is our values that are on stake here. It is our values that are on trial here, and not the values of the killers. And we must always distinguish ourselves from them. सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट में क्या बोला? आधार क्या बोला? The Supreme Court has rejected the argument. Supreme Court ने खारिज कर दिया है ये बहस कि उन्हें स्पेसिफिक हार्म प्रूव करने की जरूरत है। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आदमी फांसी के फंदे के नीचे रहता है, जिसका मर्सी पिटिशन इतना डिले हो चुका है, ये जाहिर है वो सफर कर रहा होगा, वो परेशान होगा, मेंटली टॉर्मेंटेड होगा, और इन हालात में उनका डेथ पेनल्टी कम्यूट करना ही कानूनी तरीके से सही होगा। इनके रिलीज के लिए भी सर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि कानूनी तौर पे जब किसी को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है तो ये सजा जीवन भर चलेगी, मगर सरकार को 14 साल के बाद पावर है इनको रिलीज करने का। इन कैदियों ने 22 साल जेल में काट लिया है अभी, और सरकार स्टेट गवर्नमेंट ये निर्णय ले सकती है उनके पॉलिसी के आधार पे कि उनको रिलीज किया जाए या नहीं। तो सुना आपने, सरकार के पास पावर है, 14 साल के बाद वो रिलीज कर सकती है। अब सरकार को ये फैसला करना है कि वो क्या करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनकी सजा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दी है। कहा यह जा रहा है कि दया याचिका को देरी का आधार बनाया गया, और ये दया याचिका राष्ट्रपति के पास थी और लंबित हुई थी, और इसी को यह आधार बनाकर जो फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। 22 साल तक से जेल में बंद हैं ये तीनों दोषी हैं। संथम I think one has to take a decision, and keeping the commitment in mind, the government is bringing this Telangana bill in Lok Sabha today, and we will try our level best to get it passed. सर हिंदी में सर तेलंगाना बिल आज आ रहा है, तो देखिए जो कमिटमेंट किया था उसके आधार पर तेलंगाना बिल आज लोकसभा। तो राजीव शुक्ला तेलंगाना बिल पर बोल रहे हैं, लेकिन हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दी है। 3 दोषी जिनके नाम मुरुगन संथन पेरारिवलन है, जिनकी सजा फांसी की सुनाई गई थी, उन्हें उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है और आधार बनाया गया है दया याचिका को देरी
इसे आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति के पास लंबित थी ये याचिका, काफी वक्त पहले दी गई थी। 11 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी इन तीनों को और 22 साल से ये जेल में बंद हैं। जिस तरह से आपने अभी वकील साहब को भी सुना, उनका ये कहना है सरकार के पास ये अधिकार है, शक्ति है, पावर है कि 14 साल के बाद इन्हें रिलीज भी किया जा सकता है और ये समय सीमा, ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि 22 साल से जेल में बंद है ये, तो सवाल